Hello student, we are going to start our next chapter, chapter number 9, problem of deficient demand and excess demand. In this chapter, we will go through number 1, some essential concept like full employment equilibrium, underemployment equilibrium, voluntary and involuntary unemployment, full employment and natural unemployment, problem of deficient demand, problem of excess demand, measure to correct deficient and excess demand. Firstly, we discuss some essential concept. Let's start. Full employment equilibrium refers to that situation in the economy when AS equal to AD or S equal to I, along with fuller utilization of resources, means so that there is no excess capacity or unemployment in the economy. प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या किया था, ए और एस इक्वल थी, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ था, बट अलोंग विद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी थी. लेकिन इस कंसेप्ट में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या है, क्या डिफरेंस है कि देयर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड. Underemployment equilibrium refers to that situation in the economy when AS equal to AD or S equal to I, but without fuller utilization of resources. Accordingly, there is unutilized capacity or excess capacity in the economy, even a state of equilibrium. This concept we discussed earlier in the previous chapter. So, there are two types of equilibrium. First is full employment equilibrium and second is underemployment equilibrium. In full employment equilibrium, there is no excess capacity in the economy, but in underemployment equilibrium, there is excess capacity in the economy. Next concept, voluntary unemployment and involuntary unemployment. First, voluntary unemployment refers to a situation when people choose to remain unemployed even when jobs are available. They may not be willing to work at all or not willing to work at the existing wage rate. वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से. कुछ ऐसे लोग भी हैं इकोनॉमी में जो जॉब नहीं करना चाहते, जो काम नहीं करना चाहते, उनको हम क्या कहेंगे, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड पर्सन कहा जाएगा. सेकेंड है हमारा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. Involuntary unemployment refers to the situation when some people are not getting work, even they are willing to work at the existing wage rate. जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने के लिए रेडी हैं बट उनके पास जॉब्स नहीं हैं, दोज पर्सन इंक्लूड इन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड एंड दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉन एज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. इस सिचुएशन में क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन AD इज नॉट इनफ टू इंड्यूस फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. सम रिसोर्सेज आर अनयूटिलाइज्ड बिकॉज रीज़न क्या है, क्योंकि डिमांड नहीं है. डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी, और इसलिए कुछ लोगों के चाहते हुए भी हमें उनको क्या करना पड़ेगा, जॉब से आउट करना पड़ेगा. इस कंसेप्ट में जो प्लान आउटपुट है वो लोअर है, किससे, पोटेंशियल आउटपुट से. मतलब इकोनॉमी में एक्सेस प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है लेकिन डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से कुछ रिसोर्सेज क्या है, अंडर यूटिलाइज हैं. कुछ जो हमारे यूनिट्स हैं, कुछ हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है वो हम अभी यूज़ नहीं कर रहे. सम पीपल आर फोर्स्ड टू रिमेन अनएम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी. सो देर आर टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट हमने डिस्कस की वॉलेंट्री एंड सेकेंड हमने डिस्कस की इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री को मोस्टली हम इंक्लूड नहीं करते अनएम्प्लॉयमेंट में. हम किसको इंक्लूड करते हैं, ओनली इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को ही अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट mean a situation of zero involuntary unemployment. As a student of economics must carefully note that in the economy
A situation of full employment never imply a situation of zero involuntary unemployment. मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ये नहीं है कि इकोनॉमी में ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है. अनएम्प्लॉयमेंट में हम वॉलेंट्री को लेते ही नहीं, लेकिन फिर भी एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो इकोनॉमी में ऑलवेज एग्जिस्ट करती है. एंड दिस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड natural unemployment. This occurs owing to fact that there are constant changes in the supply and demand parameter in the economy. किस पर बेस है कि इकोनॉमी में क्या है, सप्लाई और डिमांड दोनों क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम पीरियड के लिए, फ्रिक्शनल टाइम पीरियड के लिए क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में अराइज होती है. जैसे अगर एक पर्सन है वो जॉब चेंज करना चाहता है, वो एक जॉब से दूसरी जॉब पर जाना चाहता है, तो जब तक एक जॉब से रिटायर होने के बाद दूसरी जॉब उसको नहीं मिल जाती, तो जितने टाइम पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड करेंगे. तो दिस सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट divided into two parts. Number one, frictional, and second is structural unemployment in the economy. Let's discuss one by one. First is frictional unemployment. In the word of Gardner, frictional unemployment is the unemployment associated with changing of jobs in dynamic economy. वी नो दैट इकोनॉमी जो है एनवायरमेंटल बेस, और एनवायरनमेंट या इकोनॉमी क्या है, डायनामिक है, मीन्स उसमें चेंज होते रहते हैं. तो उसकी वजह से जॉब पैटर्न में भी आपके क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए. फर्स्ट इज़ इमोबिलिटी ऑफ लेबर. मीन्स अगर लेबर है वो एक वर्क से दूसरे वर्क को करने में, वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी नहीं जाना चाहते, तो इस वजह से वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं. सेकेंड, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल. प्रोडक्शन चल रही है लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो ख़त्म हो जाता है, रॉ मटेरियल फिनिश हो जाता है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है, तो प्रोडक्शन रुक जाती है. उसकी वजह से आपको लेबर को भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. तो इससे भी कौन सी सिचुएशन अराइज हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज हो जाएगी. लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कि अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन लोगों के पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी वजह से भी वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है. शॉर्टेज ऑफ पावर, वियर एंड टीयर ऑफ मशीन, कि काम करते करते लाइट ख़राब हो गई, मशीन ख़राब हो गई, उसकी वजह से प्रोडक्शन रुक गई, इसकी वजह से भी जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे. टेंडेंसी ऑफ वर्कर टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब. कि वर्कर की, कुछ वर्कर्स हैं, कुछ पीपल्स हैं, उनकी हैबिट होती है कि वो जॉब चेंज करते रहते हैं. तो एक जॉब से दूसरी जॉब तक जाने में जितना टाइम पीरियड है, जितना गैप आया है, उसके लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, और उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. सेकेंड टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट में हम किसको इंक्लूड करेंगे, वो है हमारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा, इन द वर्ड ऑफ गार्डनर, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज. व्हाट इज़ द डिफरेंस, फ्रिक्शनल चेंजेस जो थे वो शॉर्ट टर्म थे, बट स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, लॉन्ग टर्म डिक्लाइन से रिलेटेड होते हैं. कि इंडस्ट्री जो है वो कुछ टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए बंद हो गई हैं. इस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इट इज़ एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी ड्यू टू दी सिचुएशन. फर्स्ट सिचुएशन आपकी क्या है, व्हेन अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अदर देन लेबर आर इन शॉर्ट सप्लाई. देयर आर मैनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लैंड है, लैंड को हम, अगर लैंड की शॉर्टेज हो गई तो उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, इसकी वजह से भी क्या इंक्रीज हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी. व्हेन लेबर लैक एक्सपर्टाइज फॉर न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज.
सपोज करो कि आपने पहले मैनुअल वर्क होता था और अब कंप्यूटराइज्ड वर्क होने लगा है, लेकिन जो आपके वर्कर्स हैं, जो लेबर हैं, वो ओल्ड टेक्निक मैनुअल वर्क करने में एबल हैं, लेकिन वो कंप्यूटराइज्ड वर्क करने में एबल नहीं है। तो या तो आपको उनको काम से हटाना पड़ेगा या फिर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और उस ट्रेनिंग में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कंसीडर करेंगे। थर्ड सिचुएशन है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक, जब आपकी प्रोडक्शन की टेक्निक में ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और प्रोडक्शन की टेक्निक में चेंज कब होता है, जब डिमांड पैटर्न चेंज हो जाता है। इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल कि पहले कॉटन क्लॉथ की डिमांड थी, अब सिंथेटिक क्लॉथ की डिमांड हो गई, तो जो कॉटन क्लॉथ बनाने वाली मशीनें थी वो क्या हो जाएंगी, आपकी फेल हो जाएंगी, और आपको पूरा ही स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, अपना पूरा ही प्लांट चेंज करना पड़ेगा, और इसकी वजह से आपको अपने वर्कर्स को जॉब से हटाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है पूरा प्लांट सेटअप करने में। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट भी किस में इंक्लूड होगी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड होगी। So these are some basic concept of this chapter. In the next lecture we will discuss about the problem of excess demand and deficient demand. Student, learn this concept carefully and make neat and clean notes. Thank you.